गुड इवनिंग सीता जी। गुड इवनिंग वंदना जी। स्टार्ट करें। 4 हो गया, 4 बज गए। नमस्ते एवरीवन। जो लोग ज्वाइन किए प्लीज वीडियो ऑन करिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट वंदना जी। ऑल द बेस्ट वंदना जी। बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक वंदना जी। यस थैंक यू। चलिए, सबको अभी मैं म्यूट कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, आई एम स्मिता, एक टीचर ऑफ आरंभ योगा इंस्टीट्यूट। आप सभी को ये एक स्पेशल वीक में एक न्यू सेशन पर आप सबको स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। हमारा सेशन हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। ठीक है, जो भी जैसे भी हो, जहां पे हो, अपने प्लीज सेटल डाउन। अगर चश्मा पहने हैं तो चश्मा को निकाल लीजिए। बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट, eyes closed, focus on your breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Starting our session, 3 Omkar chanting followed by prayer. Inhale and start. Om. Inhale. Om. Inhale. Om. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hand. Slowly and gently open your eyes. Once again, good evening everyone. Please आप लोग सब कैमरा ऑन करिए तो अच्छा लगेगा सबका चेहरा देखते हुए। Now few lines about Arambha Yoga Institute. Arambha Yoga Institute is accredited by Yoga Certification Board, YCB, Ministry of Ayush, Government of India. It is an ISO certified institute for the international standard that specifies requirements for a quality management system, QMS, and it is running as an educational wing of Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. We work to enlighten the world, especially young aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession, and introduce them to the real essence of yoga and benefits of introducing and applying yogic practices to their lifestyle, resulting
in improved life balance of an individual, hence turning up a better society. I personally feel very proud to be associated with this institution. आप सभी को जब स्टार्टिंग किए थे मैंने एक स्पेशल वीक के लिए आपको सबको वेलकम किया था। ये जैसे एवरी ईयर हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है, तो हम लोग ये जो वीक है आज से लेके 4 मार्च से 8 मार्च तक ये हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू यू ऑल। Every year, Aram Yoga Institute celebrates International Women's Day. Just like in past years, this year too, we have selected topics related to women's health. स्मिता जी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा नेट का पता नहीं क्या हुआ। एक सेकेंड। यू कैन कंटिन्यू स्मिता जी। हाँ हाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा पिक्चर मेरा ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, नहीं yes. ना? Yes, yes, it is visible. Yes, madam, it is visible, madam. विजिबल। ओके ओके Yes. ओके ओके। एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। So just like in past years, this year too, we have selected topics related to women's health to assist you not only with your health, but also with your overall well-being. Our today's session is about one of the common issues, and that is IBS, irritable bowel syndrome, which is observed to be more common in women over men. To enlighten us all about this, we have a very talented, experienced, and a caring friend of mine, Dr. Vandana Sharma. Welcome, Vandana ji. Thank you so much, Smita ji. Such a lovely introduction. Dr. And- Vandana hails from Bangalore and is connected with us today from Naitupeta near Tirupati, Andhra Pradesh. She is a homeopathy doctor, educated at Mumbai University, Maharashtra. Alongside her medical qualification, she is also a certified yoga teacher. She qualified YCB level 2 and now she is pursuing YCB level 3 yoga evaluator and level 4 yoga master. She is a practitioner and a yoga teacher by heart. ये हमारी वंदना जी है। तो हमारे सेशन स्टार्ट करने से पहले आप 2-3 पॉइंट्स आपको बताती हूँ, गाइडलाइंस याद रखना। We have a question and answer session at the end. Please fill the feedback form so we can serve you better. And always आपका जो ऑडियो ऑफ रखना, वीडियो ऑन रखना throughout the session. Without further delay, let's start the session. Over to वंदना जी। मैं आपको अभी नाउ योर होस्ट, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। Okay, thank you so much, Smita ji. And good evening, everyone. Thank you so much for attending this workshop. Before I continue, I just wanted to thank my Professor Sushma ma'am, who is director of Aram Yoga Institute, and she has given us so nice guidance regarding this workshop, and throughout this yoga journey, she is the best guide and best supportive throughout this journey. And along with Sushma ma'am, I wanted to thank to other faculties, Rita ma'am and Dr. Sonali and Sanjeev sir and Balkrishna sir, and most important, all my yoga friends, they were here to give me nice support. And all of you, those my good friends and my students, all are here, so most welcome. So before I start, so I just wanted to ask you one small question, okay? So whenever we wake up in the morning, what is the main thing we do? Can anyone just answer me? जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? Except seeing your mobile, other thing, don't.
I think the first thing we go is urination. I mean, when I go for the first thing that I get up, like is go for urination and all. वॉशरूम, ओके, समवन हैज मेंशन हियर वॉशरूम, राइट। सो ये जो दो चीजें हैं, मुख शुद्धि और मल शुद्धि। मुख शुद्धि मतलब क्लीनिंग और ओरल कैविटी। जितना हमारा ओरल कैविटी हाइजीन और मेंटेन करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है मल शुद्धि। आपका पेट साफ होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपका पेट साफ होगा वैसे ही देखना, अगर आपका दिन भर आप अगर पेट साफ नहीं हुआ है, आप पूरा कॉन्स्टिपेटेड हो, कैसा आपका दिन चला जाता है ना, एकदम डल। और वही कॉन्स्टिपेशन अगर आपको सिंस 2-3 डेज से चलता आ रहा है, हाउ यू फील? आपको अदर सिम्टम्स आ जाते हैं, हेडेक हो, कुछ भी हो, मतलब अलॉन्ग विद एज अ गिफ्ट पैकेज आपको ब्लोटिंग, गैस, पूरा वन हैंड एक पूरा पैकेज में आ जाता है। वही अगर आपको लूज मोशंस हो रहा है, तो लूज मोशन में क्या होता है, अलॉन्ग विद लूज मोशन अगर कंटिन्यू आपको लूज मोशन, आपको ही नहीं, आपके फैमिली में किसी को भी अगर लूज मोशंस हो रहे, तो उसके साथ साथ क्या होता है, लूज मोशन के साथ साथ ब्लोटिंग, गैस, एब्डोमिनल पेन होता है। और इस चीज के काफी सारे अलग अलग रीजंस है, तो वही आज हम देख रहे हैं। और जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर हमें लूज मोशन होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर होता क्या है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का अंदर का जो लाइनिंग्स है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। और जब वो इन्फ्लेम हो जाते हैं ना, उसी कंडीशन को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। वेरी सिंपल है ये टॉपिक, वेरी कॉमन है, और हर जगह आप ये देख सकते हो। मतलब इवन आपके फैमिली में भी आप किसी को भी आप देखो, नोटिस करोगे, तो अगर ये सेशन आपको हेल्प आउट होगा, जस्ट आप फ्यू पॉइंट नोटिस करना इसमें। जैसे किसी को अगर लूज मोशंस हो रहा है काफी दिनों से, कुछ भी मेडिसिन हो या कंट्रोल नहीं हो रहा, वो रिपीटेडली हो ही रहा है, तो आपको थोड़ा अवेयर होना है कि ये अलार्म साइन है, यहाँ यू नीड अ हेल्प। ओके, सेम थिंग विथ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। Okay, so today's our topic is irritable bowel syndrome. Okay, so इसमें होता क्या है, अभी मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन वर्डिंग्स में आपको बताना चाहती हूँ। बाउल मतलब आपका कोलन, आपका इंटेस्टाइन, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इरिटेबल मतलब जिससे रिपीटेडली लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो इन्फ्लेम हो रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, जिसे आप बहुत और ओवर सेंसिटिव बना रहे हैं, इसलिए इसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है और हर जगह आपको ये मिल जाएगा, मतलब बहुत लोगों में ये पाया जाता है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किस तरह से, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर दोनों मिक्स होके आता है। कुछ लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, इसके रीजन काफी सारे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज है मेन रीजन, लैक ऑफ फाइबर इन योर डाइट, और बहुत सारे, जैसे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि कौन से एज ग्रुप में ये पाया जाता है। जैसे अर्ली टीन एज में ये आप इसको नोटिस कर सकते हो, अप टू 40 इयर्स ऑफ एज। अगर आफ्टर 40 इयर्स आपको लूज मोशन या डायरिया हो रहा है, तो वो नॉर्मल डायरिया है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इन दोनों को स्टडी किया जाता है। अभी आप थोड़ा इसमें ध्यान देंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एब्डोमिनल पेन होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, अलोंग विथ आपको हेवी गैस, एसिडिटी फॉर्म हो जाती है। इतना गैस फॉर्म हो जाता है ना कि पर्सन को, मतलब एक भयानक, बोलते हैं ना हम, बेयर नहीं कर पा सकता पेन। और फिर लूज मोशन अगर हो रहे हैं तो आप वो कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको कुछ भी खाना आपके सामने लाया, थोड़ा भी खाया, आपको लूज मोशन होता है और करना पड़ता है वॉशरूम में। और जब आप मोशन पास करते हो, देन यू गेट रिलीफ, आपको रिलैक्स लग जाता है कि ओके आपने, बट अगेन आप आते हो वापस और अगेन यू ट्राई टू ईट समथिंग, आपका बाउल, आपका इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, अगेन आपको वाटरी लूज मोशंस होते हैं। ये मोशंस के साथ होता है, डायरिया में ऐसा होता है। और इसमें ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन इसमें इन्वॉल्व होती है। क्यों होती है ये हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी कैसी वर्कआउट करती है ये मैं बताती हूँ। ये फीमेल्स में ज्यादा अफेक्टेड है कंपेरेटिवली मेल। ओके, तो
और ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, वेरी कॉमन कंडीशन है। ये नेचुरली अगर आप मैनेज करोगे आपके लाइफस्टाइल को तो वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा हम फोकस करेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करती है। ओके, ये हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कह सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो। ओके, तो इसमें होता क्या है, पहले आपने कुछ भी खाना खाया, आपका माउथ में अंदर ले लिया, आपके दांत, मेन आपके दांत च्यूइंग करते हैं जो भी फूड पार्टिकल आप लेते हो, और सलाइवा सिक्रीट होता है। देखो आपको याद होगा आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहते ही रहते हैं ना कि एटलीस्ट थोड़ा चबा चबा के खाओ, 32 टाइम चबा के खाओ। तो इसका मतलब लिटरली 32 टाइम्स आपको चबाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप जब आप च्यू करते हो, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स आपके ऑल अराउंड आपके ओरल कैविटी में है, जैसे यहाँ दिए है 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो वो सिक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कुछ हद तक आपका खाने से जितना भी फूड पार्टिकल है उसको ब्रेक डाउन करके वो डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर फूड आपका ओरल कैविटी से, ये जो फूड पाइप है जिसे इसोफेगस कहा जाता है, इसमें आ जाता है। फिर इसोफेगस में खाना नीचे जाने के लिए जो अंदर जो मसल्स है, इंटरनल मसल्स, जिसे हम स्पाज्म मतलब क्या बोलते हैं, उसका आगे पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होके जो खाना आप खाया है उसका आगे पास भी तो करना है ना, नीचे पास भी करना है। तो वो जो मूवमेंट है उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ आपका खाना आगे 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 चला जाता है। तो अगेन फ्रॉम फूड पाइप फूड एंटर इनटू योर स्टमक। जो खाना स्टमक पे आता है तो स्टमक के अंदर भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स के साथ साथ आपका डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक फायर, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, वो रहता है। तो वो हेल्प करता है आपका जो फूड पार्टिकल आया है उसके साथ अलोंग विद दैट एंजाइम सिक्रेट होते हैं। वो सारे एंजाइम फूड पार्टिकल को अगेन ब्रेक डाउन करता है, और जितने न्यूट्रिशन उस फूड में से आपके शरीर में जरूरी है वो वहां वो प्रोसीजर नेक्स्ट लेवल में स्टार्ट होता है। इसलिए देखो जब भी हम खाना खाते हैं, जब आप खाना अंदर लेते हो तो सलाइवरी ग्लैंड इतना इनफ सलाइवा सिक्रीट करता है कि आपको एक्स्ट्रा पानी, सिप बाय सिप पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस सलाइवा में इतने एंजाइम्स है जो आपके फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं और फाइन डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या होती है, हम खाना खाने बैठे, एक बाइट नहीं लिया, हम पानी चालू किया लेना। तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। तो आप उस प्रोसीजर जो चल रहा है डाइजेशन का, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। सो इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले कुछ मिनट्स खा के आप पानी पी के बैठो। अदरवाइज खाना खाने के बाद एक सर्टन 30-40 मिनट्स के बाद बैठ के पानी पी लो, तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में बाधा नहीं लाएगा। ओके, सो सेम थिंग जब खाना आपका स्टमक में चला जाता है, अभी आप सोचो जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर है, फायर के ऊपर पानी डाला तो क्या हो जाता है, फायर बुझ जाता है, राइट। तो सेम थिंग अगर आप पानी पी रहे हो फूड पार्टिकल के साथ, तो डाइजेशन प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर रहे हो। जब आप डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हो, यहाँ गैस फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, इनडाइजेशन बढ़ जाता है, फिर आपको स्टमक एक वगैरह सब चालू हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है पानी थोड़ा। अगर हाँ किसी किसी को बहुत स्पाइसी खाना खाया या कुछ ऐसा सडनली आपको पानी की जरूरत पड़ी, तो इंस्टेड ऑफ वाटर आप बटर मिल्क साथ में रखो। और बहुत ही ज्यादा अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा एक सिप वाटर लेना, बट नॉट मोर देन दैट। फ्रॉम स्टमक अगेन यहाँ पे आपका लीवर, आपके गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, जो यहाँ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एंट्रेंस में, जहां से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, वहां पे कनेक्टेड होते हैं ये 3 चीजें। ये 3 ऑर्गन्स आपके स्टमक से लिया हुआ जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां पे अगेन डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, आप इमेजिन करो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है 20 to 21 फीट लॉन्ग रहता है। तो जो खाना स्टमक में आपने लिया है उसको डाइजेस्ट होने में ऑलमोस्ट 30-40 मिनट से लेके 1 और 2 आवर लगता है। इसलिए हम योगा में भी कहते हैं ना, थोड़ा 2 घंटे के बाद आप योगासना करो। फिर जो खाना डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, वहां से जो आगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन यहाँ कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो एंजाइम्स आपके जो फूड पार्टिकल्स है, जैसे लैक्टेज वगैरह
एंजाइम से जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहे। तो जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हम बोलते हैं प्रोडक्ट खाने के बाद जिनको एलर्जी हो जाती है, लूज मोशंस होते हैं, तो उनके लिए यहाँ कहा जाता है वो एक पर्टिकुलर डाइट को ना लिया जाए। जैसे आईबीएस में कुछ लोगों को लैक्टोज से एलर्जी, जैसे मिल्क प्रोडक्ट लिया तो उनको लूज मोशंस वगैरह होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप मत लो। तो सेम चीज है, आपका पैनक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर, लिवर, आपका स्टमक में जो भी फूड है उसमें एंजाइम सिक्रीट करके, बाइल सिक्रीट करके डाइजेशन में वहां हेल्प करता है। फिर फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन आपका फूड पार्टिकल अगेन ब्रेक डाउन होता है। मैक्सिमम जितना भी डाइजेशन है, जितना भी एब्सॉर्प्शन है, जितने न्यूट्रिएंट है आपने जो खाया है उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो है, जो फूड अंदर लेना, फूड में एब्सॉर्ब होना, फूड पार्टिकल से न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होना, एसिमिलेशन होना, वो सारा मैक्सिमम अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया। अभी नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देता है कि भाई मेरा काम तो हो गया, अभी जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज रहा हूँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम चालू कर देता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेन प्रॉब्लम काम लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, जितना खाना आ गया है, जो वेस्ट मटेरियल, जो डाइजेस्ट होने के बाद भी जो बच जाता है, जो वेस्ट है, जो बॉडी को जरूरत नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको और फर्दर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसने अपना जितना न्यूट्रिशन लेना था उसमें से ले लिया, उसने लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया। लार्ज इंटेस्टाइन वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आया है, जो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर कंटेंट है, मिनरल्स है, डिफरेंट डिफरेंट, वो सब एब्सॉर्ब करती है, उसको बल्क फॉर्म में फॉर्म करके उसको फिर आगे पुश करके रेक्टम से, फिर लास्ट एनल कैनाल से, जैसे आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट, वो एक्सक्रीट करने में हेल्प होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉर्मल हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे वर्कआउट करता है। अब आईबीएस में क्या होता है, आईबीएस डायरिया में क्या होता है, ये हमारा हेल्दी गट है। ओके, हेल्दी वे में आपका ये नॉर्मल हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें आपको ये जैसे डाइजेशन आपका प्रॉपर वे में हो गया। अभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में 2 या 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। एक बताया गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, बिग बॉस, जो हमारा पूरा बॉडी को, जो हमारे गट को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो उसका जो नर्व्स का कंट्रोल थोड़ा उसका वीक जाता है, रिफ्लेक्सेस प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो एबनॉर्मल वे में कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से हो जाता है कि आपका जो आप एक्सक्रीट कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड आगे पास होने में डिफिकल्टी हो जाती है। आपको हेवी कॉन्स्टिपेशन अगर है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है। लैक ऑफ मोबिलिटी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मूवमेंट ही नहीं करते हैं, ज्यादातर यंग जनरेशन जो हमेशा एक जगह पे बैठा रहा रहता है, सोचो कुछ एक्टिविटीज कम है। फिर खाने में लैक ऑफ फाइबर है, आप सोल्यूबल फाइबर या ज्यादा नहीं ले रहे हो, कम फाइबर ले रहे हो, आपका बॉडी में फिर ऐसे काफी सारी चीजें जो कॉन्स्टिपेशन के लिए अफेक्ट करती है। वो है ढेर सारा, मतलब मोबिलिटी बिल्कुल नहीं करना, नो मूवमेंट, एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रहे, एक जगह पे आप बैठे रहे हो। फिर आपका जैसा अभी वर्किंग स्टाइल है, हम ऑफिस में जाते हैं तो एक कंटिन्यू लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं, फिर वाटर वंदना जी, इनटेक बहुत कम। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। थोड़ा आपका जो पिन है ना, थोड़ा सा पिन को हटा दीजिए, 2 पिक्चर आ रहा है। जस्ट सेकेंड। स्पॉटलाइट निकाल दो वंदना जी, हाँ, पिन पार्टिसिपेंट्स पे जाके स्पॉटलाइट आपका निकाल जो दो आप। जस्ट सेकेंड। आप हाँ, या व्हाट? आपके पर उसमें देखो, क्लिक करो, उसी में पिन है, आपको पिन किया है तो स्पॉटलाइट में, तो उसी को हटा दो। ओके, फाइन, डन। ना, इसमें तो वही प्रॉब्लम आता था, इसीलिए मैंने पिन किया था, तो आप आते हैं इसमें। आप एक करो, स्पीकर व्यू में आ जाओ ना, नहीं तो करके, आपको पिन इसीलिए किया था कि आप दिखाओगे। वंदना तो जी, आपका जो नाम है ना इधर, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, वो निकाल दो, सिर्फ हो जाएगा। Yes, हो डन। गया। या स्टार्ट शेयरिंग नाउ। अच्छा, नाउ इट्स फाइन। यस, यस, ओके,
So am I audible? मेरा आवाज और ये ठीक है? वापस दिख रहा है दो दो पिक्चर्स, Sorry. आपका दो पिक्चर्स दिख रहे हैं वापस, वैसा पहले था वैसा ही है, पिंड है आपका दो पिक्चर। आप No. अभी स्पीकर व्यू में हो या ये में गैलरी में हो आप वंदना जी? Yeah. So should I remove spotlight? Now check. तो Now it's like this. अभी वही पुराना वाला प्रॉब्लम आ जाएगी हमारा। चलो ठीक है, चलो। It's okay. I'll continue because again time. चलो चलो चलो। Okay. So IBS के 3 types होते हैं, IBS constipation, IBS diarrhea and IBS mixed. Okay. So इसमें होता क्या है? IBS constipation में आपने जैसे देखा severe constipation हो जाता है, पेशेंट को काफी भयानक पेन रहता है कॉन्स्टिपेशन, और पेन के साथ साथ ब्लोटिंग और एसिडिटी, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। और अगर आपको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है तो अगेन आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही इसमें आपको काफी हद तक हेल्प करता है। आईबीएस विद डायरिया, इसमें भी अगेन लूज मोशंस होते हैं, लूज मोशन सीवियर लूज मोशंस होते हैं और कंटिन्यू आपको ऑलमोस्ट 4 वीक टू 6 वीक रहते हैं। और अगर आपको डायरिया, नॉर्मल डायरिया और आईबीएस डायरिया में डिफरेंशिएट करना है तो नॉर्मल डायरिया जो होता है आपको लूज मोशंस हो रहे हैं बट ईयरली वंस ऐसे होता है, ऐसा रिपीटेडली एवरी 2-2 मंथ में 3 मंथ में डायरिया होना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर ऐसा आपको हो रहा है, रिपीटेडली डायरिया हो रहा है जो आपको गैस और एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, सीवियर क्रैम्प के साथ आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। ओके, देन आईबीएस मिक्स, मतलब एक आध दिन आपका कॉन्स्टिपेशन है और अगली बार इमीडिएटली आपको डायरिया में कन्वर्ट हो गया, या फिर अगर डायरिया बहुत हो रहा है और सडन वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों टाइप का ये रहता है, इसमें मोशंस आते हैं। ओके, नाउ आईबीएस में अगेन हमारा जो ये है, जिस तरह से मैंने ये डायग्राम में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गट और ब्रेन, कि हमारा गट और ब्रेन कैसे कनेक्टेड है। कहते हैं ना, जितना भी हम कभी कभी हम बाहर जाते हैं हम बोलते हैं ना गट फीलिंग कह रहा है, तो सेकेंड ब्रेन कहा जाता है हमारे गट को। जैसे कोई भी छोटी से छोटी भी, अगर आप स्ट्रेस में हो, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो और अचानक आपको एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चों का एग्जाम के लिए आप बच्चों को ही एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम के टाइम में कितना स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं, और जैसे ही उनको ना एग्जाम है तो उनको लूज मोशंस हो या कुछ क्रैम्प, अलग सा एक मसल्स पेन वगैरह चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है वो एकदम फ्री हो जाते हैं, उनको कुछ भी वो ये नहीं आता, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड है। तो सेम आईबीएस में भी मेन कॉज कहा गया है, इट इज स्ट्रेस रिलेटेड। ओके, तो आईबीएस के सिम्टम क्या क्या है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है या नहीं? तो इसमें क्या है, एब्डोमिनल पेन सीवियर क्रैम्प के साथ आता है। नॉर्मल डायरिया में आपको इतना पेन और क्रैम्प नहीं रहता, और या इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये दो चीजें पाई जाती है। आईबीएस में कभी कभी आपको डायरिया भी हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, या फिर दोनों अल्टरनेटिव्स में आ जाता है। ओके, देन इसमें म्यूकस भी पाया जाता है। इफ यू गो फॉर लैब टेस्ट एंड ऑल, दे विल फाइंड आउट इफ देयर इज अ म्यूकस। अगर आपको पता चला कि आप वाइट कुछ म्यूकस वगैरह जा रहा है आपके टॉयलेट में, तो आपको डेफिनेटली चेक स्टूल कल्चर वगैरह करने की जरूरत है। ओके, एंड इसमें एक पिक्यूलियर सिम्टम है, जब आप वॉशरूम चले जाते हो, वॉशरूम करके आने के बाद आपको रिलैक्स लगता है, रिलीफ मिलती है, लेकिन अगेन इफ यू ईट समथिंग आपको फिर से वो वापस पेन, गैस, वो सब वापस आ जाता है। किसी किसी को किसी चीज का फूड एलर्जी हो जाता है। देखो ये आईबीएस ऐसा है ना, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रीजंस होते हैं। किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने कहा था लैक्टोज इंटॉलरेंस, किसी किसी को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सेट नहीं होता, थोड़ा भी मिल्क के कुछ भी आप खा लो आपको उसकी वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है। किसी किसी को ग्लूटेन, जैसे आप ग्लूटेन मतलब आपका व्हीट की रोटी या कुछ भी हो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो पार्टिकल, तो उनको उस टाइप में भी गैस और ब्लोटिंग हो जाता है। तो आपको जस्ट वो फाइंड आउट करना है कि क्या ट्रिगर कर रहा है, आपको किस चीज की एलर्जी हो रही है, वो जस्ट आपको फाइंड आउट करना है एंड मैनेज करना है।
बिफोर आपको ये सिम्टम ज्यादा सीवियर हो जाए, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़े, उससे पहले आप जस्ट नोटिस करो आपका फूड इनटेक कैसा है, आपका वाटर इनटेक कैसा है, आपके स्ट्रेस फैक्टर क्या है, और उस चीज को आप रूल आउट करो, ट्रिगर जो है उसको फाइंड आउट करो एंड मेक अ डायरी। अगर बहुत कोई किसी किसी को एग की एलर्जी होती है, एग खाया कुछ खाया तो काफी देर तक उनको पेन होता है और स्टमक में अलग तरह का डिस्कम्फर्ट रहता है, और ये नॉट गुड थिंग, राइट। हमें वो लाइफ लॉन्ग हम ऐसे इसमें रह नहीं सकते, राइट। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है और आप सपोज कहीं ट्रिप के लिए गए हो, अच्छा खासा अमाउंट पे करके आप पिकनिक कर रहे हो, और पता चला आप दिन भर रूम में बैठे हो क्योंकि आपका स्टमक अपसेट है, सेम चीज है। आप रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, ओके। और किसी किसी को लैक ऑफ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, बहुत ना खाने में प्रोबायोटिक का इम्पोर्टेंस ही मतलब उनको पता ही नहीं है कि कितना जरूरी है प्रोबायोटिक हमारे डाइट में, जो आपके बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको बढ़ाता है और आपका गट हेल्थी रखता है। अगर आपका गट हेल्दी है तो नेचुरली आपका जो डेली रूटीन है, आपका मोशंस वगैरह जो भी है उसमें आपको एक रूटीन सा हेल्प होता है, ओके ना। कॉजेस से अगेन वही है, सबसे मेन कॉज है इसका स्ट्रेस। आईबीएस का मेन कॉज स्ट्रेस बताया गया है, जिसको हम नर्वस स्टमक या एंशियस स्टमक भी बोल सकते हैं, जो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। जैसे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, जो थोड़ा सा जैसे राइट हो, मुझे भी अभी थोड़ा ऐसे स्टमक थोड़ा ये हो जाता है ना, हम गड़बड़ बोलते हैं ना, पेट में थोड़ा सा हल्का सा, तो वो तो मतलब कॉमन ये है। लेकिन आईबीएस वाला जो ये है उसमें काफी हद तक आपको क्रैम्प्स आके फिर आपको रन करना पड़ता है वॉशरूम में, ओके। और इसका मेन दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जो हमारे ब्रेन से मेन जो नर्व्स हमारे गट में जाते हैं, ओके, जो सप्लाई करते हैं आपको गट में, से एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, जो मेन नर्व जो आपके ब्रेन और आपके स्टमक को कंट्रोल करती है, नर्व्स जो पास करती है न्यूरॉन थ्रू जो सेंसेशन, जो भी रिफ्लेक्सेस वगैरह, वो है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व जो काम करती है डायरेक्ट ब्रेन टू गट कनेक्शन, ओके, थ्रू एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो थोड़ा भी गड़बड़ी आपके पेट में हो रहा है तो आपका ब्रेन उसको बता देता है कि कुछ तो इशू है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, काफी हद तक वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो आपको लूज मोशन हो जाता है, या फिर अगर वो थोड़ा डल हो गया, मसल स्पाज्म अगर स्लो डाउन हो गया तो आपको डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी है डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो, वो डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, ओके। सो यहाँ वही अगेन बताया गया है कि कैसे न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू, जैसे वेगस नर्व के थ्रू आपको ब्रेन से सिग्नल मिल जाता है, और किस तरह से आपका ब्रेन और गट आपका कनेक्शन हो जाता है। अगेन इसमें जो बैक्टीरिया कहा गया है, जो गुड बैक्टीरिया, तो गुड बैक्टीरिया के साथ साथ इसमें थोड़े ना जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो और अदर बैक्टीरिया, ये आईबीएस वालों का जो गट में ना बहुत सारे एबनॉर्मल बैक्टीरिया जैसे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, जो गट को खराब करने में, लूज मोशंस वगैरह ये सब बढ़ाने में काफी हद तक वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो आवर नर्वस सिस्टम प्लेज मेन रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम विच कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन, ओके। सो वेगस नर्व, that is the main sensory information about the condition inside your gut, and through ENS में अगेन एंट्रिक नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक वो सिग्नल पास करती है वेगस नर्व। अगर गट में कोई इशू है तो ब्रेन को सिग्नल देना और ब्रेन से ऑर्डर लेना, एंड देन दैट विल कंट्रोल योर गट मूवमेंट। तो जो रिफ्लेक्स है, वो रिफ्लेक्स जो स्लो डाउन करना या फिर ज्यादा फास्ट ये करना, वो रिफ्लेक्स जो भी है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए स्ट्रेस, अगर आप काम हो, रिलैक्स हो, तो आपका गट एकदम हेल्दी रहता है। लेकिन अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जर्नी कर रहे हो, आप स्ट्रेस आउट हो, तो नेचुरली वो गट आपका डिस्टर्ब रहता है, ओके। सो नर्वस सिस्टम वर्क्स अलोंग विथ एंडोक्राइन सिस्टम। सो अगेन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो हार्मोन्स भी आपके बॉडी में, आपके गट हेल्थ में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लेडीज में, जैसे पीरियड्स के टाइम में कुछ लोगों को काफी हद तक बोलते हैं ना एब्डोमिनल क्रैम्प आके मोशंस होते हैं। उसका एक रीजन, मेन रीजन ये है,
आपकी जो यूट्रस है, आपका जो पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें मेन हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सेम हार्मोन आपके गट को भी सप्लाई होता है, मतलब वो हार्मोन्स उसमें भी ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेम हार्मोन्स की वजह से आपको जो पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स और आपको जो सेंसेशन आता है मोशंस का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर हार्मोनल सप्लाई टू योर गट. ओके, सो दैट कम्युनिकेट थिंग्स लाइक हंगर, फुलनेस. एंड अगेन यहाँ आपके जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन में कुछ जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड जो बोलते हैं, जो आपके हंगर, फुलनेस वो कंट्रोल करता है. हंगर, कितना आपको भूख लगी है, कितना आपको खाना चाहिए, और आपका स्टमक फुल है कि नहीं. वो ग्रेलिन और लेप्टिन करके दो हार्मोन्स है आपके ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन में, वो कंट्रोल करते हैं आपका हंगर. तो अगर आपका स्ट्रेस में हो और अगर आपको वो रिफ्लेक्सेस सही तरीके से नहीं जा पा रहे, आपका नर्व्स कहीं तरह से सिग्नल नहीं ले पा रहा है और ब्रेन को सिग्नल गलत तरीके से जा रहे हैं, और आपको बहुत भूख लग रही है, बहुत बच्चों का ऐसा रहता है ना, बार बार खाने की आदत रहती है बहुत सारे लोगों को ना, मतलब रिपीटेडली खाना खाना है ऐसा. तो आपको जस्ट कूल डाउन करना है कुछ हद तक, प्राणायाम या कुछ मेडिटेशन करके थोड़ा ब्रेन को कूल डाउन करो और फोकस करो कि आप जितना काम होगे अपना उतना ही आप अपने ब्रेन में जितना आपके हार्मोन्स, आपका हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल कर पाओ थ्रू प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम. ओके, वो एक है. एंड देन सेकंड चीज है, जब हम खाना खाने के टाइम में ना, आपका जैसे बोलते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी टाइम लेता है खाना डाइजेस्ट होने के लिए. ओके, लंबा आवर्स तक. तो आप इतना याद रखना, आप खाने का कोई भी पार्टिकल मुंह में डाला, वो कंप्लीट प्रोसीजर, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज का टाइम लेती है कंप्लीट डाइजेशन के लिए. अगर आप हल्का लाइट खाना खाओगे 1 or 2 डेज में आपका डाइजेशन प्रॉपर वे में होगा. लेकिन आप बहुत हेवी और गैस प्रोड्यूस करने वाले सब मतलब पार्टिकल, फूड पार्टिकल आप ले रहे हो रिपीटेडली और गैस फॉर्म कर रहे हो बॉडी में ज्यादा तरीके से, अगर जैसे खाने में अगर आपने काफी सारे कैबेजेस, कॉलीफ्लावर, अब देखना बहुत गैस प्रोड्यूस करने वाले जो भी सब्जियां है वो सब खाया, तो डाइजेस्ट होने में एक लंबा टाइम लेता है. तो वो जो प्रोसीजर है उसको अगर आपको हेल्दी वे में लेना है तो हल्का खाना खाना, जितना जल्दी और जितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जितने फूड पार्टिकल में फाइबर ज्यादा हो, फ्रेश खाना हो, जैसे आप खाना खाओगे IBS में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, नाउ ये था आपका मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपका बॉडी कैसे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और वगैरह. लेकिन ये योगिक एनाटॉमी में काफी साल पहले हमारे जो गुरुज थे उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि योगा में इस कॉन्सेप्ट को, कि आपका स्ट्रेस कितना आपका बॉडी पे अफेक्ट करता है, वो पहले ही कहा, उन्होंने डिस्क्राइब किया है. ओके, कैसे? तो जैसे आपका शरीर को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, करण शरीर. ओके, और इसमें पंचकोशास है. ये पंचकोशा करते क्या है? ये पंचकोशा अपना अपना हर एक इसमें आपको बॉडी को एनर्जाइज करते हैं. तो थ्रू आपके आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन से आप इनको स्ट्रेंथन कर सकते हो. अब कैसे इसका इफेक्ट होता है, देखिए, अगर आपका मनोमय कोशा, आपका माइंड अगर डिस्टर्ब है, अगर आपका मन में आप कोई निराशा है, कोई स्ट्रेस है, तो ऑटोमेटिकली वो अफेक्ट करता है आपके प्राणमय कोशा को. प्राणमय कोशा क्या करता है? प्राणमय प्राण वायु को थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करता है. सपोज आपका प्राणमय कोशा डिस्टर्ब हो गया है, प्राणा जो मूव हो रहा है नाड़ीज में, वो नाड़ीज कहीं ना कहीं ब्लॉक है, तो प्राणा मूव होने में डिफिकल्टी हो जाती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है. और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका स्थूल बॉडी पे, आपके अन्नमय कोशा पे, आपका बाहर के शरीर पे वो दिखाई देता है. तो किसी भी फॉर्म में दिखाई देता है. तो यहाँ जहां हम अभी बात कर रहे हैं IBS की, तो ये ज्यादातर अफेक्ट करता है आपका गट पर, और गट पे अफेक्ट करके ये इनडाइजेशन करता है. और इनडाइजेशन करने के बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू योगिक वे, अकॉर्डिंग टू योगा थ्योरी, योगा एनाटॉमी. हमारा IBS में 3 तरह के 3 टाइप कहे गए हैं. एक है अति जीर्णत्वम,
इसके नाम से ही आपको आइडिया आया होगा, अतिजीर्णत्वम मतलब ओवर ईटिंग कॉजिंग IBS-D। मतलब खाना पहला आपने अंदर लिया भी नहीं और दूसरा खाना खा रहे हो। पहला खाना आपका डाइजेस्ट हुआ नहीं, आपने और खाना अंदर लिया और वो जीर्ण मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ओके, सो इनडाइजेशन, अतिजीर्णत्व मतलब ओवर ईटिंग की वजह से जो डायरिया फॉर्म होता है उसे अतिजीर्णत्व कहते हैं, जिसको मॉडर्न इसमें हम IBS-D कहते हैं। अजीर्णत्व सेकेंड टाइप जो IBS-C है, जो कॉन्स्टिपेशन का, अजीर्णत्व मतलब इनडाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ओके, जो भी खाना आपने खाया है वो उसमें प्रॉपर वे में एंजाइम्स उसके साथ मिक्स नहीं हो रहे, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा वो फूड पार्टिकल, और जो न्यूट्रिशन जितना चाहिए बॉडी को नहीं मिल पा रहा, वो है अजीर्णत्व। ओके, नाउ थर्ड है कुजीर्णत्व, IBS-M। ओके, ये भी इम्प्रॉपर डाइजेशन है, इसमें दोनों आइदर डायरिया या फिर इनफ क्वांटिटी में एंजाइम सिक्रेट ना होने की वजह से फूड डाइजेशन में इफेक्ट करता है। ओके, तो सिम्टम्स आपने देखे होंगे, सारे सिम्टम्स हमने देखे, कॉजेस हमने देखे। कॉजेस में वही है, डिसमोटिलिटी, अगेन गट बैक्टीरिया। IBS पीपल हैव डिफरेंट टाइप एंड अमाउंट ऑफ गट बैक्टीरिया इन देयर GI ट्रैक्ट। जरूरत से ज्यादा गट बैक्टीरिया रहते हैं IBS में स्पेसिफिकली। ओके, एंड GI ट्रैक्ट का एनी इन्फेक्शन और एनी पर्टिकुलर फूड इंटॉलरेंस, किसी भी पर्टिकुलर चीज की एलर्जी फूड की, वो आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस फूड से आपको एलर्जी हो रही है। आइदर दूध के वजह से हो रही है, या पर्टिकुलर नट्स की वजह से हो रही है, या पर्टिकुलर किसी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हो रही है। काफी सारे फूड है जिससे आपको लेने के बाद अगर आपको लूज मोशन, गैस और पेन के साथ हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन गैस और पेन के साथ हो रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और हमारे अकॉर्डिंग टू सेज वशिष्ठ, उन्होंने भी वही कहा है कि IBS इज अ आदि व्याधि, मतलब आपके जो भी ये साइकोसोमैटिक डिसीज कहा गया है कि जितने भी आपके थॉट्स वगैरह है, राग द्वेष जो भी है, वो पहले जैसे हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, मनोमय कोशा से अफेक्ट करते हैं, आपके मैनिफेस्ट होते हैं आपके अन्नमय कोशा तक, इसलिए इसको आदि व्याधि भी कहा जाता है IBS को। तो अगर आपको ये सारे कुछ सिम्टम ऐसे लग रहे हैं और आपको पता करना है कि वेदर इट इज रियली IBS और नॉट, देन यू हैव टू डू सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, सर्टेन डायग्नोसिस क्या करना है, या लैब टेस्ट क्या करने हैं, आपको ब्लड टेस्ट करना है, आपको स्टूल टेस्ट करना है, आपको हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करने हैं, अगर कुछ ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है गट में तो वो फाइंड आउट करना है, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट करने हैं, और सर्टन स्कैन करने हैं। कुछ स्कैन करोगे तो आपका पूरा जो गट है, पूरा जो इंटेस्टाइनल या पूरा आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है, टॉप टू बॉटम तक आपको कुछ भी इंटेस्टिनल लाइनिंग में कहीं भी कुछ इन्फेक्शन है, उसके लिए कोलोनोस्कोपी है जो आपका कोलोन चेक करेगा। सिग्मोइडोस्कोपी अगेन अलोंग विथ कोलोनोस्कोपी ये किया जाता है। देन एंडोस्कोपी की जाती है, जिसमें आपको पता चलता है कि कुछ आपके स्टमक या कुछ आपका इसोफेगस फूड पाइप में कुछ इश्यूज तो नहीं है। CT स्कैन, अगर फाइनल कुछ स्कैनिंग में प्रॉब्लम अगर और रूल आउट करना है एग्जैक्टली कॉज, तो CT स्कैन है, MRI है। पर अभी आते हैं योगा हमारे इसमें कैसे हेल्प करता है। तो देखो, ये साइकोसोमैटिक और क्या कह सकते हैं इसको हम, IBS को हम खुद मैनेज करना है। ओके, IBS ऐसा प्रॉब्लम है ना, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल मतलब आपने खुद इनवाइट किया है, हमारे जो रूटीन है वो रूटीन को आपने थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब करके, तो आपको खुद अपने रूटीन को ध्यान देना है। आपका जो डेली हैबिट्स है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें आपको इंक्लूड करना है खाना, खाने के साथ साथ फिर सर्टेन फिजिकल, देखो इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम ऑफ IBS रिड्यूस करने के लिए योगा आपको हेल्प करता है। तो जितना भी है इमोशनली, मतलब आप अच्छा कंपनी में रहो, अच्छे खासे फ्रेंड्स बनाओ। ओके, फिजिकल सिम्टम्स जो भी आपके बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज है, ओके, वो सब रिलेटेड IBS अगर कुछ आ रहा है तो वो रिड्यूस करने में योगा काफी हद तक हेल्प करता है। देन फॉलो पतंजलि अष्टांग योगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि।
ये सब जो अष्टांग योगा कहा गया है पतंजलि का योग में, वो एक एक आपको फॉलो करना है इन टू कंट्रोल IBS. ओके, देन फॉलो हेल्दी लिविंग अकॉर्डिंग टू भगवत गीता. और भगवत गीता में कहा है अच्छा आहार, अच्छे से विहार कैसे करना है, आचार कैसे करना है, विचार, ये सब जो है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता आपका लाइफस्टाइल, अगेन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हेल्प यू इन IBS. ओके, तो योगा करता क्या है, जैसे कि कहा कि ये स्ट्रेस रिलेटेड इशू है, तो योगा आपका काम डाउन करता है नर्वस सिस्टम को टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, विच फर्दर हेल्प टू काम डाउन योर इरिटेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, देन कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस है. योगा करता क्या है एक्चुअली, योगासना करता क्या है IBS में, तो पूरा आपका टॉप टू बॉटम तक आपके पूरा बॉडी को अच्छा से एक स्ट्रेचिंग देता है. और स्ट्रेचिंग में होता क्या है, आपका एब्डोमिनल मसल्स का भी स्ट्रेचिंग होता है. एब्डोमिनल मसल्स का स्ट्रेचिंग हो गया तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है एक अच्छा मसाज मिलता है उनको, और नेचुरली आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज अच्छे से मिलेगा तो आपका गट हेल्थ इंप्रूव होने में मदद होगा. ओके, then yoga restores your normal motility of the gut. When you have IBS, contraction of your intestine may be slow to the point of constipation or spasm to the point of diarrhea. तो वो हेल्प करता है आपका गट मोटिलिटी, गट का जो मूवमेंट है. जैसे हम कुछ प्राणायाम करते हैं जिसमें हम इनहेल एक्सेल के साथ बहुत स्लोली ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं, तो वो सारे जो एक्टिविटीज है वो आपको गट हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे. ओके, देन योगा आसना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव करेगा, और नेचुरली अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होने में मदद होगा. फिर सेम थिंग है, योगासना मसाज डिफरेंट ऑर्गन एंड स्ट्रेंथन देम. आपके इंटरेस्ट अंदर जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसको अच्छा से मसाज देता है. ओके, so yoga increases awareness, thus helping you consciously avoid unhealthy practices that can lead to IBS. अब अनहेल्दी प्रैक्टिसेस मतलब क्या, इसमें सब कुछ आ जाता है. इसमें आपके बहुत सारी, जैसे टीनेज है, टीनेज में बहुत सारे, टीनेज का काफी सारे लोगों को हैबिट होती है लेट नाइट जागने की. बहुत लेट नाइट जागते हैं आप तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. फिर वीक डेज आप अच्छे से काम करते हो, सैटरडे संडे अच्छा खासा आउटिंग हो जाता है, ढेर सारा खाना, जंक फूड, ये वो. जंक फूड खाना कोई बुरी बात नहीं है, वीकली वंस आप जंक फूड खाइए. 4 to 5 days अच्छा हेल्दी घर में बनाया हुआ खाना खाना, वो खाना जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स बनाते थे वो वे में, ट्रेडिशनल वे में, देखना आपका गट कभी खराब नहीं होगा. जो खाना कभी कभी हाई फ्लेम में बनाते हैं, वो जो खाना जंक है, वो सब क्या अपने गट को और सेंसिटिव बनाता है. और ऑलरेडी IBS में सेंसिटिव गट, यही मेन रीजन है. जितना आपका गट सेंसिटिव हो जाएगा उतना आप फेस करोगे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में. और वो अच्छा नहीं लगता ना कि आप हमेशा अपना पेट पकड़ के दिन भर बैठे हो, ऑफिस गए और अब बोल रहे नहीं मेरा पेट खराब है. नहीं, उससे अच्छा है ये सब सिचुएशन अवॉइड करना है, तो बेटर है आप अपना हेल्थ को, आपके लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो. ओके, और अगर घर में किसी को ये टाइप का इशू है तो इंस्टेड ऑफ जोकिंग अराउंड दैट पर्सन, फाइंड आउट करो उसका रीजन और उसको हेल्प करो उस प्रॉब्लम से बाहर आने में. काफी लोगों को, यंग बच्चों को तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका स्लीपिंग पैटर्न, उनका ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर ड्रिंकिंग, मतलब इतना कम पानी पीते हैं ना. मतलब कुछ लोगों को बताना पड़ता है कि पानी पीना, मतलब आपको रिमाइंडर देना पड़ता है. इंस्टेड ऑफ पानी वो लोग चाय, कॉफी, टी, इस पे मतलब ये टाइप के जो अल्कोहल है ये इसमें ज्यादा लेना वो लोग पसंद करते हैं. लेकिन वो क्या करता है, और इरिटेट करता है आपको गट को, आपके इंटेस्टिनल लाइनिंग को और डिस्टर्ब कर देता है, और वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, तो जितना आप, जैसे मिताहार कहा गया है योगा में, मिताहार को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है. सो मिताहार या योगिक डाइट किसे कहा जाता है, जो खाना संतुलित हो, संपूर्ण हो और पूरी तरह से क्या बोलते हैं, सात्विक वे में हो. ओके, सात्विक, संपूर्ण एंड संतुलित, जिस खाने में आपके बॉडी को सप्त धातु जो कहा जाता है, सप्त धातु, वो सारे न्यूट्रिशन, सारा पोषण आपकी बॉडी को थ्रू माइंड से लेके पूरा ईच एंड एवरी सेल तक मिले, ऐसा खाना खाओ. जरूरी नहीं है आप प्लेट भर के खाओ, आप थोड़ा सा खाओ, लेकिन वो खाना वाइजली चूज करो.
चूज करो उस खाने से आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो आपका 50% ऑफ आपका स्टमक फ्रेश खाने से भरा होना चाहिए, आधा 25% पानी पीना चाहिए, और 25% आप फ्री छोड़ना चाहिए स्टमक को, डाइजेशन के लिए स्पेस देना चाहिए। यही है मिताहार। और जब आप खाना खाते हो, खाना खाने से पहले एक बार शिव जी को याद करना, कि जो ऑफर करना भगवान शिव जी को कि ये खाना खाना हम आज खा रहे हैं। और अब जब भगवान को ऑफर करके ये खाना, कोई भी खाना आप लेते हो, उसमें एक सात्विक वैल्यू आ जाता है जो आपके स्टमक को, आपका ओवरऑल हेल्थ को खराब नहीं करता। ओके, सो आईबीएस में बेसिकली प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पे बहुत ध्यान देना चाहिए। खाना जो आपके प्रोबायोटिक, अब प्रोबायोटिक आप देखा जाए तो कर्ड और बटर मिल्क में है, तो आप उस चीज को ज्यादा इंक्लूड करो। और प्रीबायोटिक जो है, जो आपका प्रोबायोटिक का खाना है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना को ले लो। बनाना दो वे में काम करता है। अगर आप राइपन बनाना खाओगे ना, बहुत ओवर राइपन बनाना है, वो आपको लूज मोशन क्रिएट करेगा। लेकिन आप छोटा वाला एलक्की बनाना जैसे बोलते हैं, स्मॉल बनाना आप खाते हो ना, जो कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प करेगा। तो वाइजली आपको चूज करना है कौन से टाइम में कौन सा फूड खाना है आपको। ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना, ज्यादा तला हुआ फ्राइड। ओके, बच्चों को नेचुरली आप मना नहीं कर सकते, तो आप घर में बनाओ हेल्दी वे में, ट्रेडिशनल वे में। जो भी खाना बच्चों को पसंद है वो आप खुद बना के घर में खिलाओ। ओके, फ्रेश फ्रूट इंक्लूड करो जिसमें सोल्यूबल फाइबर ज्यादा है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। फ्रेश वेजिटेबल, आईबीएस में ज्यादातर खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना और फ्रेश खाना जितना आप खाओगे उतना आपका गट अच्छा रहेगा। और अगर आपका गट अच्छा रहेगा तो ओवरऑल बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। अब फर्दर 4 दिन जो है, नेक्स्ट 4 डेज जो है, वी आर प्रैक्टिसिंग दिस सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, जो वार्म अप एक्सरसाइज आप जिसे कह सकते हो, वो हम करने वाले हैं। आसन हम करेंगे जो आपके गट को स्ट्रेंथनिंग करने में, आपके पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन, जितना भी एब्डोमिनल मसल्स है, सबको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कुछ स्टैंडिंग, कुछ सिटिंग, कुछ सुपाइन और प्रोन आसन रहेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो सब स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपका पूरा लॉन्ग मसल, शॉर्ट मसल्स, पूरे मसल्स का स्ट्रेचिंग जितना अच्छे से होगा उतना एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रेचिंग होगा। फिर शतक्रिया है। शतक्रिया क्या है? ये डिटॉक्सिफाई करता है जो भी वात पित्त कफ दोष है बॉडी में। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनका होता है उनका मेन इश्यू तो वही होता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस तरह उस टाइम में ये शतक्रिया काफी हेल्प होते हैं। शतक्रिया आपका टॉक्सिन जो है वो रिमूव करने में काफी मदद कर देता है। तो इससे कौन कौन से क्रिया हम करते हैं? वामन धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, लघु शंख प्रक्षालना, देन मुद्राज एंड बंधास भी हम करेंगे, जो अगेन आपको बहुत एक आसन और प्राणायाम जब नेक्स्ट 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ। ओके, और कुछ बंधास भी होंगे, जो बंधास हम लगाते हैं वो आपको इम्प्रूव करता है फिजिकल मेंटल वाइटलिटी, स्टिमुलेट करते हैं चक्रास को, जो एनर्जी थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। फिर कुछ प्राणायाम करेंगे रिलेटेड टू आईबीएस। ओके, प्राणायाम के काफी बेनिफिट्स है, जो आपका पूरा एक प्राणायाम हम करते जाएंगे, वैसे वैसे हम प्रैक्टिस सेशन में उसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे। ओके, मेडिटेशन भी करेंगे। मेडिटेशन का भी अपने ओन बेनिफिट्स है, आपको काम डाउन करता है आपका नर्वस सिस्टम को, ब्रेन आपका जैसे काम और कूल रहेगा। शायद थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है वंदना जी का। आ जाएगी अभी वो। बहुत वेरी बहुत सुंदर से उन्होंने समझाया सबको, बहुत अच्छे से। स्मिता जी, एम आई ऑडिबल? यस 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 वंदना जी। Yeah, just a second.
Yeah. So that's all about IBS. So I hope आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा, मैंने जो भी मेरा डे 1 था उसमें से। आपका वीडियो अगर- ऑफ है, वीडियो ऑन करिए वंदना जी। Yeah. So sorry for interruption. Sorry, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो जो भी अगर आपको इस रिलेटेड ये फर्स्ट डे वर्कशॉप में कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज ये लास्ट 5 मिनट्स उसी के लिए है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। So anyone has any doubt related to? मैडम मेरा एक क्वेरी था, मतलब हेलो मैडम, एम आई ऑडिबल? Yeah. नॉर्मली लाइक कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग यू डोंट गेट एनी मोशंस, बट लाइक आफ्टर हैविंग टी और समथिंग लाइक दैट, एनी कॉफी कैफीन एंड ऑल, तो उसके बाद तुम्हारा मतलब मोशंस होता है एंड ऑल, तो व्हाट कैन बी लाइक डू? मतलब कॉन्स्टिपेशन तो है मतलब मुझे तो, but what we can do to like have this early morning motions and all, ऐसा कुछ हम लोग के पास है क्या कुछ? देखिए पहले जो नाइट में डिनर है वो अर्ली डिनर लेना बहुत जरूरी है। आपने अर्ली डिनर ले लिया, आपने अच्छे से नींद पूरी कर ली, सो नेचुरली नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक उठने के बाद जस्ट ब्रश वगैरह होने के बाद वार्म ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए और वही हैबिट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 1-1 लीटर पानी पीना, अगेन वो आपके स्टमक को ये करेगा। 1 और 2 ग्लास बस है। तो एक कैसा होता है, कोई भी हैबिट बॉडी को एक 15 दिन आप कंटिन्यू करे हुए ना, वो एक रूटीन में आ जाता है, वो पैटर्न एक बन जाता है बॉडी का। लेकिन आप अगर वो 1-2 दिन में एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपको ठीक करेगा, क्योंकि आपने चाय कॉफी की आदत काफी सालों से है, तो उसको छोड़ने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। और बहुत सारे लोग ना अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव्स यूज करते हैं, ढेर सारे लैक्सेटिव यूज करते हैं, बहुत सारे चूर्ण खाते हैं, बहुत सारे मतलब मार्केट में भी काफी सारे एडवर्टाइज आते हैं, तो वो सब आपके गट को डैमेज करता है। एक टेम्पररी रिलीफ देता है आपको, एक फ्यू डेज ओके आपको अच्छा लगता है कि ओके यूज किया ये हुआ, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो काफी डिस्टर्ब करता है, फिर आगे और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आईबीएस वही है कि आप जितना आपका लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे उतना वो आपको ये करेगा। Excuse me, ठीक है, ma'am. एनीवन एल्स? Yeah, ma'am, some people they have the urge like before, suppose they are leaving for office or any work or outside, they are going outside. So they have the urge to go to the loo for maybe stool or urine. Why is it? That is या very वो common. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस ओनली, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके ब्रेन, जो आपको न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिफ्लेक्सेस है, वो रिफ्लेक्स ही वो हार्मोन रिलीज करता है कि आपको जाना है, आपको कंट्रोल करना है, तो वो सब आपको काम डाउन, वो एक साइकोलॉजिकली ये है। तो उसके लिए प्राणायाम वगैरह वही हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत लोगों को होता है। इवन हम ट्रैवलिंग करते वक्त भी ट्रैवलिंग डायरिया जो बोलते हैं, बट ट्रैवलिंग डायरिया इज अगेन नॉट आईबीएस एक्चुअली। डायरिया में भी काफी सारे डायरिया है। डायरिया अगर आपको ब्लड के साथ हुआ तो उसको डिसेंट्री कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरिया के अलग अलग कैटेगरीज है। आईबीएस बहुत कॉमन है, बहुत ही ये है एक्चुअली, फूड एलर्जी या फूड की वजह से होता है, ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। जैसे हमें आप आजकल ये कॉमन है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस या नट्स के एलर्जी, ये सब बहुत कॉमन है। तो वो एक रीजन है। दूसरा, प्रीबायोटिक का इंटेक बहुत कम हो जाता है, जो आपके गट को हेल्दी रखने में, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके बॉडी में नेचुरली, हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं जो आपका गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप गलत तरीके से खाना खा के आप उसको डैमेज कर रहे हो तो वो आपके हेल्थ को खराब करेगा। इसलिए दही, डेली अगर आप 1 कप दही लेते हो तो दही में जितने बैक्टीरियाज है ना, प्रोबायोटिक, वो बेस्ट है एक्चुअली। तो इंस्टेड ऑफ अभी मार्केट, अगर डॉक्टर्स तो आपको बाहर का मार्केट के बहुत सारे आप फार्मेसी में मिलते हैं कुछ Greek प्रोबायोटिक, yogurt प्रीबायोटिक, कुछ लोग, बहुत लोग लेते हैं। तो आप Greek घर में दही yogurt. बना लो। ग्रीक योगर्ट तो नॉर्मल, हाँ,
मैं योगर्ट, हाँ योगर्ट तो आप घर में भी बना के कर सकते हो, वो नहीं है, अलग कैप्सूल मिलते हैं प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो आपको बाहर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्यों याकुल्ट एक है, एक याकुल्ट। याकुल्ट वगैरह, तो क्यों हम जाके बाहर जाके वो परचेस करके ये करना है, जब आपको पता है दही सबसे बेस्ट है प्रोबायोटिक में, तो दही आप हैबिट करो। ऐसे काफी चीजें हैं जो आपको डाइट मैनेज करना है, और पानी का इंटेक भी बहुत जरूरी है, लेकिन खाना खाते वक्त नहीं, पहले या बाद में, उस तरह से। Ma'am, is there any replacement of curd for prebiotic? Like, हर कोई को कर्ड नहीं सूट करता, इस लाइक सर्दी खांसी एंड ऑल सब हो जाता है, डेली बेसिस पे नहीं ले सकते। और जो क्वेश्चन नहीं, सुनीता जी ने अभी बोला था, लाइक जो एक अर्ज होता है मीन्स कहीं बाहर जाना है हाँ, तो लाइक मोशन हो जाते हैं या आप तो मीन्स उसके लिए कुछ लाइक उसको कैसे क्योर करे, तो क्योंकि सेम चीज मेरे साथ होती है जो अभी उन्होंने रेज किया क्वेरी, तो इसके लिए भी कुछ बता सकते हैं देखो आप? ये सब हार्मोनल ये है और रिफ्लेक्सेस है जो आपका ब्रेन, आपको मेन, आपको माइंड को, वही है, आपको माइंड कंट्रोल करना है। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी आप योगा में है तो कुछ मेडिटेशन करो, कुछ प्राणायाम ये करो, फिर वही है। और दूसरा आपने पूछा कर्ड का ऑप्शन अल्टरनेटिव, अगर आपका फ्रेश कर्ड खाओगे तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगी। कर्ड विद इन 3 to 4 आवर्स में बन जाता है। कर्ड आपको बहुत घंटे रख के बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रेश कर्ड बहुत, और फ्रेश कर्ड कभी भी आपको सर्दी खांसी नहीं देगा। खाने से पहले आप बाहर रखो, फ्रिज में मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-2 दिन का कर्ड यूज करते हैं, तो नेचुरली वो आपको खराब ही करता है। कर्ड का दूसरा ऑप्शन है, आप बटर मिल्क ले सकते हो। बटर मिल्क 1 स्पून डाल के बहुत ज्यादा पतला बनाना है पानी, ऐसा वो पीना, वो आपको हेल्थ अच्छा है। ठीक है। But then, like, I mean, I have one, my senior person in my home, काफी एजेड है, तो उनको है ना, मतलब कुछ भी कर्ड खाते हैं, कर्ड या कुछ भी खट्टा, कर्ड रिलेटेड जैसा खट्टा, तो शी स्टार्ट्स गेटिंग रेड कलर रैशेस। शी इज वेरी ओल्ड एज सच। तो उनके लिए फिर आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? मतलब कर्ड का फिर ऑल्टरनेटिव हम क्या बता सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली सीनियर पीपल जो रहते हैं उनको तो डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। बहुत रहता है, करेक्ट करेक्ट। उनका बटर मिल्क दे सकते हो, फिर हल्का सा ना, जैसे फिर रागी भी बहुत अच्छा ये है, सप्लीमेंट है। रागी में भी काफी सारे कैल्शियम वगैरह, आपका आयरन सप्लीमेंट, लेकिन रागी कौन से फॉर्म में आप ले रहे हो और कौन से टाइम में ले रहे हो वो भी अफेक्ट करता है, तो वो भी देखना है। बहुत सारे, इवन जो अंजीर रहता है ना, ड्राई फिग में बहुत ज्यादा सोल्यूबल फाइबर्स रहता है जो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अगर ड्राई फिग आपके डाइट में है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो डेली 1 सूखा अंजीर आप खा लो। फ्रेश अंजीर आपको मिला ना मिला तो सूखा अंजीर आप डाइट में ले सकते हो। खाना वही खाना जो आपके नियर बाई एरिया में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, ऐसा जरूरत नहीं जो खाना हमें बोलने में भी तकलीफ हो रही है। काफी सारे सुपर फूड के नाम से हम जो, मतलब हम बात भी नहीं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी हमें नहीं आता। ऐसे बहुत सारे ब्रुसेल्स स्प्राउट्स है, एवोकाडो है, मतलब जो हम बोलने में भी बहुत हमारा टंग ट्विस्ट करना पड़ता है। उनके पीछे ना भागते हुए वो खाना खाओ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपके किचन में आपका जस्ट आपका मसाला का डब्बा खोलो, उसमें हिंग, जीरा, मेथी, हल्दी, इतना अच्छा हेल्थ है उसमें, लेकिन हम उसमें ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उसे रोज देखते हैं। लेकिन वो कौन से फॉर्म में कैसे लेना है वो हमें सोच के वो डालना है। वो बहुत हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, ऐसे ही है। और पानी वगैरह वो सारी चीजें जो है वही लाइफस्टाइल ही है आईबीएस में। ठीक है। But then, 3 like, उपाय ये सब cooks लेना, they put lot of garam masala and पूरा, like, and then वो digestion पूरा खराब कर देता है। They put lot of garam masala in that. वही मैंने बोला, कैसे खाना है वो आपको डिसाइड करना है। मेथी आप ट्रेडिशनल वे में देखो, मेथी हमेशा खाने में यूज की गई है, लेकिन वो करेक्ट वे में आप यूज करना है। मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये अगर आप एक्सट्रीम इसमें डाल रहे हो, नेचुरली आपको गैस प्रॉब्लम होगा, है ना। तो वही कहा जाता है ट्रेडिशनल वे में जो आपके दादी नानी जो खाना बनाती थी, आप वो खाना बनाना चालू करो। आजकल हम कुक रखते हैं, कुक हाई फ्लेम में खाना आधे घंटे में बना के भाग जाता है, लेकिन वही खाना आप बनाने जाओ 1 घंटे में आपका खाना होता भी नहीं है। तो वो है डिफरेंशिएशन, है ना। तो खाना आप अपने अपने बच्चों के हेल्थ के हिसाब से, इसलिए वुमेन्स डे के लिए ये प्रोग्राम इसलिए है ना कि हम लोग ही हमारे घर की, मतलब हम अपना भी ख्याल रखें और हमारे
फैमिली मेंबर्स को भी ठीक से सॉरी मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन था, है ना, लाइक बिकॉज ऑफ वाटर कंटेमिनेशन अभी मुझे लास्ट 2-3 दिन से ना लाइक लूज मोशंस एंड ऑल हुए हैं, तो कैन आई परफॉर्म फ्रॉम टुमारो, कैन आई परफॉर्म दैट आसनास और शुड आई जस्ट वॉच, या मतलब कैसे करना है, हाउ डू दैट? नहीं, आपको अभी काफी लूज मोशंस हो रहे हैं, आप मतलब या No, I कंट्रोल्ड took a medicine. No, I took some medicines. डॉक्टर ने दिया है, तो मतलब एब्डोमिनल पेन है अभी भी, बट यू नो लाइक मोशंस नहीं हो रहे, बट या एब्डोमिनल थोड़ा सा पेन है, तो शुड आई प्रैक्टिस? आप कर कल सकते जो हो आप क्योंकि कराओगे कि नहीं? हाँ, देखो अभी कैसे है ना, ये ऑनलाइन है एक तो क्लास, ऊपर से बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़े हैं, तो सबका किसी कोई योगा प्रैक्टिशनर है, कोई नया है इसमें, राइट? तो हम बेसिक इसमें ही चालू करेंगे, तो आपको ऑलरेडी आप जितना आपको आता है उतना ही आप करना, फोर्स नहीं करना। ओके, ठीक है। तो एक 3 ओंकार के साथ हम, और किसी को क्वेश्चन है? थर्ड और पीरियड ऑल्सो कैन वी डू दैट मैम, जो आप कल करवाने वाले हैं? हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, पीरियड्स में भी आप कर सकते हो कोई, क्योंकि हम कोई लेग रेजिंग वगैरह अगर मैं बताऊंगी आपको कुछ आसन जिसमें हम लेग रेज करें, जैसे अपान वायु आपका ज्यादा ओवर ये हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो उस वक्त वो वाले आसन नहीं करना। ओके, 3 ओंकार करेंगे और हम सेशन एंड करेंगे, ठीक है? सो सिट कंफर्टेबल, आईज क्लोज, बैक स्ट्रेट, इनहेल, inhale, inhale, grab your palm, cup your eyes, take your hands down and gently open your eyes. Thank you so much. So see you tomorrow. Thank you, thank you, नाइस ma'am. सेशन। वंदना जी बोल दीजिए, फीडबैक फॉर्म आप लीव करने से पहले फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। या सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म है, अगर कोई दिक्कत है फीडबैक फॉर्म भरने में तो आप बता दीजिए, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो 4 o'clock. ओके, चलिए, थैंक यू स्मिता जी। बाय।